کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا، نہیں ملا۔ چلیے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن مجھے افسوس اس بات کا رہا کہ میں نے اس وقت جو بارہمولہ پارلیمانی حلقوں کے ووٹروں سے گزارش کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ خدا را آپ جب اپنا ممبر چنو گے یہاں سے پارلیمنٹ کا، وہ ممبر چنیے جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ کے لیے بات کر سکے، جو آپ کے لیے لڑ سکے، جو آپ کے جذباتوں کی ترجمانی کر سکے، جس کی تقریروں سے آپ کے مطالبے اور مشکلات حل ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک جذباتی کیمپین چلا، یہاں نوجوان اور خاص کر نوجوان اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ جذبات میں بہہ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اننت ناگ کی نمائندگی ہوتی ہے، آج پلوامہ کی نمائندگی ہوتی ہے، آج شوپیاں میں پارلیمنٹ کا ممبر ہے، آج سری نگر سے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، گاندربل سے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، بڑگام کے 4 اسمبلی حلقوں سے پارلیمنٹ کا ممبر ہے، لیکن آپ کا پارلیمنٹ ممبر نہیں ہے، آپ کی آواز وہاں بلند نہیں ہوتی۔ اب اس الیکشن میں آپ کے پاس موقع ہے کہ کم سے کم جو پارلیمنٹ میں ہماری آواز نہیں رہی، کم از کم آپ کے جذباتوں کی ترجمانی، آپ کی آواز، آپ کے مطالبے، آپ کے پریشانیاں لے کے آپ کا نمائندہ اسمبلی میں جا کے آپ کے لیے بات کر سکے، لڑ سکے۔ انشاءاللہ 8 اکتوبر کو حکومت بننے کے بعد وہاں منسٹر بن کے آپ کی نمائندگی کر سکے۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہماری آواز کو یہاں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہمیں الگ الگ امیدواروں کے پیچھے جو ہے لگایا جانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہم اگر تقسیم ہوئے، ہم اگر بٹ گئے، ہمارے ووٹ اگر الگ الگ ہو گئے تو ہمیں نقصان ہوگا اس بات کا۔ لیکن اب چلیے، پارلیمنٹ میں جو ہوا سو ہوا۔ یہ اسمبلی الیکشن جو ہے، جہاں ایک طرف سے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے روزمرہ کے مطالبے حل کریں، وہاں دوسرے طرف سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ 5 اگست 2019 کو جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے حقوق جو ہم سے چھینے گئے، ہماری شناخت جو ہم سے لی گئی، ہمارے زمینوں کو جو خطرہ پڑا، ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے حق کو جو ہم سے چھینا گیا، کہیں خدا نہ خواستہ اس پہ اسمبلی سے منظوری کی مہر تو نہیں لگنی چاہیے۔ میرے ساتھیوں نے یہاں تقریر کی اور کہا یہ بی جے پی والے یہاں ووٹ کیوں مانگتے ہیں کہ امیدوار نہیں ہے۔ ان کے امیدوار اپنے سمبل میں نہیں ہوں گے، لیکن جگہ جگہ بی جے پی نے یہاں اپنے امیدوار کسی نہ کسی جو ہے تنظیم کے حوالے سے میدان میں اتارے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جموں کا سارا ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو ملے، کشمیر کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، اور کسی نہ کسی طرح بی جے پی کی حکومت بنے، اور اس حکومت کے ذریعے اسمبلی سے ایک ایسا ریزولوشن وہاں سے پاس ہو، قرارداد پاس ہو، جس کے تحت یہ کہا جائے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے 5 اگست کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو 370 نہیں چاہیے، جموں کشمیر کے لوگوں کو 35A نہیں چاہیے، جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی زمین پہ جو ہے نہیں چاہیے۔ جو ہوا جموں کشمیر کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب اگر آپ رفیع آباد کے لوگ یہاں سے یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہو باقی دنیا میں، نہیں تو کیا مجبوری تھی ان کو یہاں وہ آج ایک ڈیلیگیشن آیا ہے باہر کے یہ ایمبیسیوں سے،
वो श्रीनगर और बाकी जगहों में इलेक्शन देख रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको यहाँ लाने की, सिवाय ये कि वो यहाँ से एक पैगाम भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद मुतमईन हैं। ये डेलीगेशन जम्मू में क्यों नहीं है? ये डेलीगेशन रजौरी पुंछ में क्यों नहीं है? इस डेलीगेशन को श्रीनगर भेजने का मकसद ही ये था कि ये आपके मतलब आपके बारे में एक गलत राय बाकी दुनिया में फैलाएं, और हमें इस चीज से होशियार रहना पड़ेगा, खबरदार रहना पड़ेगा। इन्होंने वो लोग मैदान में उतारे हैं जिनका आज सही रूप जो है, सही शक्ल लोगों के सामने आ रही है। जिस शख्स ने मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान हराया, आज उसकी असलियत सामने आ रही है। जो आदमी कहता है कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों को सलाम करता हूं, जो आदमी कहता है कि मैं यासीन मलिक की फांसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा, दोबारा मुझे बताइए नाम ऐसे ऐसे लोगों को वो आज गले मिलता है जो श्रीनगर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड उतारती है, जो मीडिया के जरिए यासीन मलिक के फांसी की जो है मांग करते हैं। अब मुझे बताइए ना, अब हम इंजीनियर रशीद से के कहने पे जाएं या उसके करने पे जाएं? कहता है कि मैं मोदी साहब के नए कश्मीर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन चुन चुन के मैदान में उम्मीदवार वो उतारे हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के इशारों पे यहाँ पे चले, और वो उम्मीदवार आपके हमसाये में है, चाहे वो सुंबल से हो, चाहे वो बीरवा से हो, चाहे वो कहीं और से हो। कहने के लिए तो कहता है मैं दिल्ली के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन जब तकरीर होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। और परसों इंटरव्यू के जरिए क्या कहा उसने? कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इंजीनियर रशीद साहब को 2018 में बुलाया, उससे 1 घंटे मुलाकात की, और उस मुलाकात के दौरान मोदी साहब ने इंजीनियर रशीद को कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाने वाला हूं। 2018 में, गौर करिए इस बात पे, इंजीनियर रशीद साहब खुद तस्लीम करते हैं कि 2018 में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कहा कि मैं कश्मीर से 370 हटाने वाला हूं। मैं मजबूर होता हूं पूछने पे इंजीनियर रशीद साहब से, जनाब अगर आपको 2018 में मालूम था कि 370 हटने वाला है, आप 2019 तक खामोश क्यों रहे? क्यों खामोश रहे? आपने किसके कार्ड में डाला? हम में से किसी को कहा आपने? हम मिलके वकील करते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, सुप्रीम कोर्ट से कहते ना हमें लगता है खतरा है 370 को, आप हुकूमत को रोकिए इससे पहले कि वो कुछ करें। लेकिन वो खामोश रहे, 1 साल खामोश रहे, और 2018 में उनकी खामोशी का हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। आज भी मुझे एक जगह इंजीनियर साहब की तकरीर दिखाएं जिसमें वो ये कहता है कि वो बीजेपी के इलेक्शन के बाद मदद नहीं करेगा। एक जगह जिन नौजवानों ने उसको वोट डाला, जिन माओ बहनों ने उसको वोट डाला, जरा पूछिए उससे क्या इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद करेगा या नहीं? अमित शाह साहब ने खुद कहा कि ये नेशनल और कांग्रेस वालों के अलावा अगर कल को हमें एमएलए की जरूरत पड़ेगी हम बाकी पार्टियों से बात करेंगे। बाकी पार्टियों का मतलब कौन? अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी, आजाद उम्मीदवार। मतलब ये कि बीजेपी ने इन लोगों को पहले ही अपने खाते में गिनना शुरू किया है। अब रफियाबाद के लोगों ने तय करना है क्या आपको बीजेपी की हुकूमत चाहिए या अपनी हुकूमत चाहिए, आप लोगों की अपनी हुकूमत। ये फैसला आपने करना है, क्योंकि पिछले 5-6 साल का हम आज भी खमियाजा भुगत रहे हैं। चलिए छोड़िए हमारी रियासत का दर्जा नहीं है, छोड़िए हमारे पास अपना झंडा नहीं है, छोड़िए हमारे पास आईन नहीं है,
छोड़िए, हमारे पास अपनी जमीन पे हक नहीं है। रोजमर्रा की परेशानियों का कम गिनना शुरू करिए ना। कौन सा ऐसा बेरोजगार नौजवान है जिसको पिछले 5 साल में रोजगार का ऑर्डर मिला हो? कहीं पे भी इन इलाकों में पुलिस की भर्ती हुई? कहीं पे भी कोई नौजवान ऐसा है जिसको पिछले 5 साल में मुलाजमत का ऑर्डर मिला हो? आज नौजवान हमारे बेरोजगार परेशान। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह अगर 8 अक्टूबर को अल्लाह ने चाहा और आपके वोट हमें हासिल हुए और हमारी हुकूमत बनी, हम पहले दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां यहाँ के नौजवानों को देना शुरू करेंगे। यहाँ कौन सा ऐसा घर है जो बिजली को लेके परेशान नहीं है? बिजली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट और बिजली का बिल आपको वक्त में मिलता है। बिजली की फीस जब जावेद साहब आपके एमएलए थे 200, 250, 300 रुपए महीने से ज्यादा नहीं। आज बिजली का बिल 1800, 1900, 2000 रुपए से कम आपकी बिजली की बिल आती नहीं है। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। यहाँ इलेक्शनों में हमारे मुखालिफ गैस के चूल्हे बांटते हैं। अरे गैस का चूल्हा बांटना बहुत सस्ता है ना। गैस का सिलेंडर देखो क्या हाल है। आज 1700, 1800 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता है। यहाँ लोगों को चूल्हा मिलता है लेकिन उस चूल्हे को जलाने के काबिल नहीं होते वो। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम 12 सिलेंडर मुफ्त गैस बांटेंगे उन घरों में जहां ये चूल्हे नहीं जलते। राशन की बात करें, जब जावेद डार साहब आपके एमएलए और मिनिस्टर थे, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी मिलती थी, राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन का स्केल होता था इतना कि उस राशन पे आपका गुजारा होता था। आज राशन डिपो से ना आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है, और स्केल आज राशन डिपो से आपको 2.5-3 किलो उसके अलावा मिलता नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी 8 अक्टूबर के बाद, जब आपकी दुआओं के नतीजे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, हम जम्मू कश्मीर में दोबारा एक तरक्की का दौर, एक अमन का दौर, एक भाईचारे का दौर, एक वो दौर जिसमें नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ ना हो, एक वो दौर जिसमें नौजवानों के खिलाफ FIR न लगे, एक वो दौर जिसमें PSA का कानून जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, एक वो दौर जब हम बाहर जेलों में जो सड़ रहे नौजवान उनको वापस आके यहाँ छोड़ने का काम शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह वो दौर आएगा और 8 अक्टूबर के बाद आएगा। लेकिन आज सिर्फ आपसे एक मौजबाना गुजारिश करके आपसे इजाजत लूंगा कि 1 अक्टूबर को यहाँ वोट डालने का दिन है। मेहरबानी करके सुबह सवेरे पोलिंग बूथ में जाएं, बिस्मिल्लाह करें, हल का बटन ढूंढिए और जावेद साहब को और मुझे आप अपनी नुमाइंदगी और अपनी खिदमत करने का मौका दे दीजिए। यही मेरी गुजारिश है, यही गुजारिश करने में यहाँ आया हूँ।